personal finance would be a topic which might appeal to the people more like in the 30s and 40s and 50s, because that is the generation which actually has made a mess of their own finances and probably no better method than learning it through movies. I'm very, very happy to anchor or moderate this session, because when somebody who has shaped your professional career is along with you as an author, it gives me immense pleasure, because Amit, I have known him for almost close to 17, 18 years now, and he has been an instrumental influence on the way we have grown, on the way we have operated our firm. So very, very happy, Amit. अमित का स्टाइल थोड़ा सटल है, थोड़ा कई बार नॉकआउट पंच नहीं आएगा, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा वो क्या बात बोल रहा है। तो उस बात के लिए मैं थोड़ा आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि टू बी अलर्ट, बिकॉज बहुत सारे नॉकआउट पंचेस वो बहुत सेटल करेंगे, जोर का धक्का धीरे से देता है, तो वो स्टाइल है उसका, उसके लिए आप ध्यान रखिएगा। अमित अभी प्रोलिफिक ऑथर है, उसकी पहली किताब राइडिंग द रोलर कोस्टर वाज अ सुपर हिट सक्सेस। It captures all the wrong things we do. और so thank you very much. एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए VLF के ऑर्गेनाइजर्स को, and nice to see the room full on a Saturday morning. And as Sanjit was mentioning, good to see. So typically I say good to see black hairs in the room. Most of the times you either see white or none at all. So I've got some. The idea of okay, let me just stand up and speak. I'll be more comfortable that way. The idea of this book the subject is next slide. Yeah. Just read this. Yeah. Okay. It's okay. That's okay. Just go back a bit. Go back. Yeah, okay. So this is a typical impression of a lot of people. A personal finance का विषय कैसा है? So dull, dry, difficult. And why does that happen? Simply because many students also sitting here. आपको कभी पैसे के बारे में स्कूल में पढ़ाया जाता है कुछ? नहीं? Anybody in the room? क्यों? Well, I don't know. I don't even expect an answer from you. But वो पढ़ाया नहीं जाता है स्कूल कॉलेजेस में, and they actually empower us to make money. And after we make money, we are left on our own. अब क्या करें? And all of us then go through the school of trial and trial is less and error is more. So that's what we go through, and along the way we pick up our lessons. And this is precisely what I also did. I picked up my lessons along the way. So, फाइनेंशियल सर्विसेज में हूँ 25 साल से, बट 25 साल पहले जब जॉब करने गया था तब फाइनेंस में नहीं जाना था, और एक सुखद अकस्मात हुआ जिंदगी में कि उस समय और कहीं पे नौकरी नहीं मिली, केवल फाइनेंस कंपनी में मिली। सो हाल ये था कि तैरना आता नहीं था, किसने धक्का मार दिया, पानी में डाल दिया, अब आप क्या करोगे? फिर हाथ पैर मारोगे, पर्पस क्या होगा हाथ पैर मारने का कि डूबना नहीं है। ओलंपिक गोल्ड जीतने की तमन्ना नहीं थी, डूबने से बचना था। और 25 साल तैरते तैरते थोड़ा बहुत तैरना आ गया। So I thought, can we make this subject enjoyable and easy? And that's where this subject, I tried to connect it with something where, as Mr. Santosh Desai was mentioning, I know how many of you read his column. He picks up day-to-day events in life and then draws lessons from a lot of those things. And this is precisely what I also attempted to do. I hope you'll attempt it successful. So, can you go to the next slide, please? Broadly, the book is divided into 5 sections, and I'm not going to read out all the 5 sections. These 5 sections are then further divided into 50 stories. Okay. There are a lot of students out here, and you must be studying mathematics also. Please don't divide 50 by 5. हर सेक्शन में 10 स्टोरीज नहीं है,
कुछ में कम है, कुछ में ज्यादा है, बट टोटल 50 है। नहीं, क्या फाइनेंस की बात आती है तो लोगों को आंकड़े समझ में आ जाते हैं कि नंबर्स होंगे, इसमें नंबर्स बहुत कम है, गलती से कुछ आ गया होगा, अदरवाइज नहीं है। Because that's precisely what a lot of us struggle with. Many of us, and I'm not going to take a poll right now, but many of us struggle with mathematics as a subject. So I'm not going to take a poll, ma'am. Okay? Because normally in this kind of polls, you don't get the correct answers. And if we struggle with numbers, and money apparently looks like it's all about numbers, the reality is not that. And as you can see here, the last point, money is not about numbers, actually it's about how to live a comfortable life. And if that's the purpose, how do we use that money? So can we go to the next slide, please? And next, I've already spoken about this. The next one. So let's look at some samples. And I thought of starting with a small movie clip as an introduction to how this book is, although book doesn't have any video clips obviously. अभी तक हम लेवल पे नहीं पहुंचे। How many of you like अमिताभ बच्चन? हाँ, so अगर अमिताभ बच्चन आपको फाइनेंस पढ़ाने आए तो मजा आएगा ना? हाँ, तो उसी से शुरुआत करते हैं मैम। Can we go to the next slide? And this one is a movie clip. Yeah. If you just take the cursor here, the bottom left would be right. So the movie's name is mentioned. Yeah. Volume. Well, let's replay that. Can we put a mic there? Look for a mic in front. Over. Can we stop this lights? Yeah. Okay, there is an issue with sound, so bear with it. Don't really bother. But जिसने ये मूवी देखी है, कालिया, उनको याद होगा ये क्या था, right? बॉब क्रिस्टो पूछता है अमिताभ बच्चन को, तुम कौन हो? और अमिताभ बच्चन बोलता है, अच्छा, don't start comparing the voice. He has got a much better voice. मैं उसकी आवाज भी नहीं बोल सकता. तो अमिताभ बच्चन says, हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे खड़े नहीं रहते, जहां हम खड़े होते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है, right? But इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आप में से कितने लोग अमिताभ बच्चन है? Nobody? So आप खड़े वहां लाइन शुरू नहीं होती है, जहां लाइन होती है आप खड़े रह जाते हैं. So we typically tend to follow the herd. What my neighbor is doing, what my boss in the office is doing, what my brother-in-law is doing, हम लाइन में लग जाते हैं. दुनिया पूरी जो करती है वो करना शुरू करते हैं. Now that's a good habit. So for example, if somebody has read a book and I ask your opinion about that book and you tell me that that's a good book, तो सबसे अच्छा है वो बुक लेके खरीद के पढ़ लो. बट इन्वेस्टमेंट की दुनिया में वो ओपिनियन नहीं चलता, बिकॉज वो ओपिनियन के चलते द प्राइसेस गो अप और डाउन. अगर पॉजिटिव ओपिनियन है तो प्राइसेस गो अप, व्हिच मींस लाइन में आप पीछे खड़े तो महंगा खरीदते हैं और लाइन में आप पीछे खड़े तो सस्ता बेचते हैं. ऑब्वियसली महंगा खरीद के सस्ता बेचो तो क्या होगा? नाउ अ सिंपल मूवी, very powerful dialogue, and that actually tells us how not to behave. Can you go to the next slide, please? Then I thought, what's the answer to this? ये behavior हम लोग करते हैं, तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? And actually, 1980s movie कालिया, 1970s movie कालिया, आंसर मिला 1950s की मूवी में श्री 420 में. ये मूवी में एक जगह पे राज कपूर ऐसे ही कहीं पे रोड पे मंडरा रहा तो हवलदार उसको पकड़ के पूछता है कि कर क्या रहे हो भाई. मतलब वो एक्चुअली शीर्षासन करने लगा था भाई, रोड पे था, सॉरी, और वो पूछा क्या कर रहे हो, तो उसने ये जवाब दिया था कि हवलदार साहब
इस औंधी दुनिया को सीधा देखना हो तो सर के बल खड़ा रहना पड़ता है। मतलब कि जो सब दुनिया कर रही है ना, उसका उल्टा करो। अब उतनी तो अगर हम लोगों में है नहीं, बिकॉज हमको किसी ने फाइनेंस पढ़ाया नहीं है ना, तो उल्टा कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, फोकस ऑन योरसेल्फ, focus on your requirements, and your requirements and your situation is always going to be unique. All your investments are not for any purpose other than living a comfortable life for yourself. तो हम हमारी जरूरत देख के करेंगे ना, तो वैसे भी ये औंधी दुनिया में सीधा देखने लगेंगे हम, अदरवाइज तो लाइन में खड़े रहेंगे किसी और का देखेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट में कई बार ये होता है ना, भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, मैंने तो सफेद पहनी ही नहीं है, उसकी सफेद हो सकती है। तो अपनी जरूरत के हिसाब से अगर करेंगे देन इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑलटुगेदर। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टिंग? ओके, क्वाइट अ फ्यू। तो जो लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं उनको शायद ये स्टोरी में कनेक्ट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनको पता चलेगा। A lot of times what happens is, lot of investors start as long-term investors. पैसा लगा रहे हैं 10 साल, 15 साल, 25 साल के लिए लगा रहे हैं, बट पैसा लगाने के बाद, इन्वेस्ट करने के बाद कुछ हो जाता है मन में और टेलीविजन ऑन होता है। And my publisher is CNBC, फिर भी मैं बोलूंगा CNBC ऑन करते हैं, and some anchor comes and says something. And then we become speculators. So ये जो मूवी थी चुपके चुपके, उसमें अमिताभ बच्चन का जो रोल था ना, was it परिमल त्रिपाठी और सुकुमार सिन्हा? Those of you who watched the movie, उनको पता है कि जैसे ही वो जया बच्चन उसके सामने आती है ना, then the guy gets confused because he was faking परिमल त्रिपाठी's role and actually he was सुकुमार सिन्हा, और उसको पता नहीं चला कि जया बच्चन के सामने सुकुमार सिन्हा रहना है, बनना है या परिमल त्रिपाठी रहना है। Lot of times an investor starts with a long-term outlook and then becomes a short-term speculator. Neither is wrong, but if you are a short-term speculator, stick to that. If you are a long-term investor, stick to that. अगर इधर से इधर जंप किया ना, तो यहाँ पे अमिताभ बच्चन की कॉमेडी हम लोग बाहर बैठे हंस रहे थे, दुनिया हंसेगी। Next please. Yeah, okay, we will just skip this, but huh? Audio might work. Yeah, so let's play. This is a wonderful, very powerful one. Yeah, Satya Prasad, exactly. Okay, so anyway, you don't live with me only. I mean, sorry, Mr. Bhatt. इसमें सत्य पे सत्ता मूवी में वो अमजद खान के घर पे जाता है और अमजद खान उसको दारू पिला के बात निकलवाता है उसकी फैमिली के बारे में। तो ये समय पे जो बात कर रहा था, तो सबसे पॉपुलर लाइन थी उस मूवी की, दारू पीने से लीवर खराब होता है। अबे दारू पीने से लीवर खराब होता है तो पॉपुलर बन गया, लेकिन उसके बाद नो, सिर्फ मनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी नीड टू मैनेज दैट मनी। समझ नहीं है बट किसी को पूछ लिया, किसी ने कुछ बता दिया, बात मान ली। तो देयर आर मेनी स्टोरीज, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, बट कैन वी गो टू द नेक्स्ट वन प्लीज? एंड दिस आई थिंक द लास्ट स्टोरी दैट वी विल नो, ओके, सो आई रिमूव इट, बट last year around January, I think it was 2nd January, a friend who is a financial advisor, he sent me this message. He gifted this book to one of his clients, and this is put on Amazon. So this he's put it on Amazon also. So I'll briefly tell you what happened. The client of this financial advisor, उसका बेटा 18-19 साल का था, गलत रास्ते पे चल गया था, and he was spending most of his time on mobile, but he had also got some bad company. और वो bad company के चलते थे, he borrowed some money for whatever he was into. I didn't really bother to ask कि करता क्या था, but जो करता था उसके लिए he borrowed some money, और वो पैसा इतना बढ़ गया, देने की ताकत नहीं थी, माँ बाप को कह नहीं सकता था, and one day a few goons came to his house to recover money. He had no option but to sell off his mobile and pay off.
दिया ना, अब मोबाइल नहीं रहा, अब जिंदगी मिल गई. So he had time for the family, and उसमें the parents started talking about one story every day from this book, सबसे बड़ा रुपया. And in no time, they said, my son's behavior started changing. मेरे हिसाब से इससे बड़ी ब्लेसिंग एक ऑथर के लिए और कुछ नहीं हो सकती. तो do some discussion between me and Ranjit. Yeah, what do you? सबसे पहली बात, ये टाइटल कहाँ से आया? मतलब एक बहुत ही यूनिक टाइटल है फॉर अ बुक, and that too on personal finance. So I had to think of a title after writing the book. अच्छा, you do other way. हाँ, मतलब नामकरण बाद में किया था. अच्छा. But नामकरण करने के लिए, in fact, the irony is the title of the book is सबसे बड़ा रुपया, and the 50th chapter of the book says रुपया is not सबसे बड़ा after all. It is life which is bigger. पैसा is only a means to live that life. रुपया सबसे बड़ा नहीं है. But I wanted to, put a catchy title, so that's where from the movie picked it up. There's this famous song of Mehmood. The whole thing is that रुपया सबसे बड़ा रुपया, so that's where it's picked up from. Interesting. Since I see a lot of children here, मुझे लग रहा है कि शोले में गब्बर बोलता है कि I am sure that ये वाला डायलॉग आप लोगों ने सुना ही होगा, कितना इनाम रखे हैं सरकार ने? याद है? बच्चे बता सकते हैं कितना अमाउंट था? अच्छा, बच्चे 50, पूरे 50,000. अब आपको ये लग सकता है कि यार ये इतना बड़ा गुंडा था, डाकू था, ये चिल्लर, मतलब 50,000 बड़ा रकम है, लेकिन चिल्लर अमाउंट के लिए उसको क्यों कर रहे हैं? But this is the 1975 movie. Can you tell us ये आज के रुपए में कितना होता था? और इसका एक सिंपल फंडा भी अगर आप बता सके, so that मूवी से हम लोग कुछ कनेक्ट कर पाए. Okay, so let's do a simple experiment. School going children, please raise your hand. Mathematics पढ़ते हो ना? हाँ? तो अगर 50,000 रुपया 1975 में था, वो अगर 14% पर ईयर के हिसाब से ग्रोथ होता है, तो 2020 में कितना होगा? ये तो मैथमेटिक्स का आता है ना, ऐसा क्वेश्चन क्या आता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है ना आपने. ओके, सो लेट मी मेक इट सिंपल. एट 4, बच्चों ये वाला सुनो ध्यान से. अच्छा, बच्चों से अलावा बड़ों को भी सोचने वाली बात है, बिकॉज हमारा दिमाग जो है ना, वो कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं सोच सकता. हम लोग स्ट्रेट लाइन में सोचते हैं, इधर उधर करके नहीं सोच सकते, नहीं चलता है ये. इसलिए जीपीएस की जरूरत पड़ती है, अपने आप रास्ते नहीं मिलते हैं. सो 14% पर ईयर मींस हर 5 साल में डबल. तो 1975 में 50,000, पूरे 50,000, तो 1980 में हो गया 1 लाख, 1985 में हो गया 2 लाख, 1990 में 4, 1995 8, 2016, 2005 32, 2010 64, 2015 128. So this is what 128? This is 1 crore 28 lakhs. और 2015 में 1 करोड़ 28 लाख था, तो आज कितना होगा? 2.5 करोड़ रुपया. बराबर है ना? ये सिंपल लेसन है कंपाउंडिंग का. हर 5 साल में डबल होता है. तो उस समय में जो 50,000, पूरे 50,000 था ना, वो आज का 2.5 करोड़ हुआ. अगर 14% के हिसाब से गिनते हैं तो यू कैन लुक एट व्हाटएवर परसेंटेज. बट दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उस समय पे 50,000 इतनी बड़ी रकम हुआ करती थी. आज लगे कि 50,000 इतनी महत्व की नहीं है. और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आज अगर आप एक मोबाइल फोन 50,000 का खरीदते हो, 75 to 2020, उसका 45 साल गिन लो, और तो एक मोबाइल फोन आएगा उतने में. यस,
and the incoming and outgoing calls will be free, but handset उतने का होगा. And this is called inflation. ये महंगाई जो है ना वो शॉर्ट टर्म में दिखती नहीं है, बट जितना लंबा अरसा उतनी महंगाई की मार ज्यादा पड़ती है. एंड बच्चों स्पेशली आप लोग लंबा जियोगे बिकॉज मेडिकल साइंस ने उतनी प्रगति करी है. लंबा मतलब कितना पता है? किसी ने बीच में एक आर्टिकल पढ़ा था, कहीं पे रिसर्च में लिखा है कि जो व्यक्ति 150 की उम्र तक जीने वाला है वो ऑलरेडी पैदा हो चुका है कहीं पे. हो सकता है विदर्भ में भी हो, पता नहीं. 150 इयर्स. और हम लोग बोलते हैं 60 में तो रिटायर हो जाएंगे. ठीक है, 90 इयर्स से रिटायरमेंट बड़ा मजा आएगा. 90 इयर्स मतलब 40/2, तो वो 50,000 वाला 2.5 करोड़ हुआ था, वो 2.5 करोड़ में कितना होगा? इनफैक्ट मुझे आई वाज गोइंग टू आस्क यू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि चलती का नाम गाड़ी में एक गाना है. हाँ. ये तो मेरा 5 रुपए 12 आना. Yes. इससे क्यों 1950 का गाना है और 5 रुपए के लिए इतना गाना क्यों गाया होगा? तो कैन यू एक्सप्लेन 14% tax are fund for the children? Most others will also know, but for their benefit also. या so 14% 5 साल वाला बेसिकली कंपाउंडिंग समझने के लिए सिंपल सा थंब रूल है. इट इज कॉल्ड रूल ऑफ 72. 72 डिवाइडेड बाय द परसेंटेज रेट ऑफ ग्रोथ. उतने साल में करीब करीब पैसा डबल होता है. सो 14 into 5 70. तो मैंने 72 वो हिसाब से गिन लिया. 72 डिवाइडेड बाय 14 रफली आंसर होगा. थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट थंब रूल है तो रफ कैलकुलेशन में चल जाएगा. इसलिए 2 करोड़ 56 लाख नहीं होगा, थोड़ा ऊपर नीचे होगा. एंड दिस कंपाउंडिंग ऑफ इन्फ्लेशन, जो बड़े लोग हैं उनको ये समझ में होगा कि उन्होंने जब पहली सैलरी मिली थी ना, उसकी कंपैरिजन में आखिरी सैलरी या अभी लेटेस्ट साल की सैलरी, वो भी जो ग्रोथ है ना वो भी इन्फ्लेशन है. तो हमारी कमाई में भी इन्फ्लेशन आता है और हमारे खर्चे में भी इन्फ्लेशन आता है. प्रॉब्लम कहां आती है? जैसे कमाई बढ़ती है ना तो हम खर्चा एडजस्ट कर लेते हैं उसके साथ, और जब कमाई कम होती है ना तो वो वाली एडजस्टमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है. और एक समय आता है जब कमाई बंद होती है, जिसको सीधी सादी भाषा में हम निवृत्ति काल बोलते हैं, रिटायरमेंट बोलते हैं. और वहां पे एडजस्टमेंट करना मुश्किल बन जाता है, और इसी हिसाब से सोच समझ के प्लान करना जरूरी बनता है. So हमने बच्चों की बात की, लेकिन there are a lot of people who are already investing, and again शोले का डायलॉग है, जो डर गया तो वो मर गया. Can you explain the context and how it makes people behave in the markets? मेरे हिसाब से पैसे की जब बात आती है ना तो more than anything else our decisions are emotional. और वो इमोशन में सबसे पावरफुल इमोशन अगर मेरे हिसाब से तो डर है, सबसे पावरफुल. आप कई लोग ये बोलते हैं कि इट इज फियर एंड ग्रीड, बट ग्रीड जो है ना वो भी डर की दूसरी साइड है. वो लालच कहां से आती है? कोई मेरे से आगे निकल गया तो वो वाला डर है, उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे. और वही इसमें 3 इडियट्स में आया था, बराबर है. 3 इडियट्स में अगर आपको याद है तो कॉलेज में रिजल्ट आता है तो माधवन और शर्मन जोशी रिजल्ट देखने जाते हैं, बराबर है ना. और उसमें रैंचो का नाम नहीं दिखता है. उनको पता था कि हमारा कहां होना चाहिए, उधर रैंचो का नहीं था. तब जाके माधवन क्या बोलता है वो सब होने के बाद कि दोस्त फेल होता है तो दुख होता है, लेकिन अगर वो फर्स्ट आता है तो ज्यादा दुख होता है. अभी जो ज्यादा दुख होता है ना वो भी डर का दूसरी साइड है कि मेरा दोस्त इतना आगे निकल गया और मैं रह गया. तो ये जो डर है ना उसके चलते हुए बहुत गलतियां होती हैं. या तो हम बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेते डर के मारे, या तो बिना सोच समझे रिस्क ले लेते हैं. और दोनों साइड डर गया समझो मर गया. ये जो लोगों वाला एस्पेक्ट है, लोगों को देख के जीने वाला, तो जिंदगी में मिलेगी दोबारा वाला रेफरेंस है कि आई वांट टू लिव माय लाइफ किंग साइज. एब्सोल्युटली. But that leads to a lot of unintended consequences. Typically, you will end up buying on what is called 0% finance, or credit card का abuse हो जाता है, या extreme loans लोग ले लेते हैं. And you have made a reference in the movie Tararam Pam,
जहाँ पे वो रेस कार ड्राइवर होता है वैसा एटॉमिक कार एंड देन उसकी लाइफ ऐसी जाके एकदम क्रैश होती है. तो could you explain some reference to that? So actually मेरे हिसाब से जिंदगी जो है ना ये दो मूवी के बीच में आती है. जिंदगी ना मिलेगी आराम पाओ. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में ऋतिक रोशन क्या करता है, वो बोलता है 40 पे रिटायर होना है इसलिए आज पूरी मेहनत करके कमा लो, जीना बंद कर देता है. तो उस समय पे कतरीना कैफ उसको बोलती है कि तू मर गया 40 के पहले तो क्या होगा, जीना छोड़ दिया तूने अभी से. सो वो एक एक्सट्रीम है. और दूसरा एक्सट्रीम काला रंगों में सैफ अली खान रेस का ड्राइवर था, बहुत इजी कमाई थी, पैसा आ ही रहा था, वो जीत रहा था एक बार और उसमें एक्सीडेंट हुआ. और जैसे एक्सीडेंट हुआ रेस बंद हुई, इनकम बंद हुई. बट वो इनकम के साथ एडजस्टमेंट कर लिया था उसने खर्चों की साइड पे. और वो खर्चे एडजस्ट करने में क्या था, सिंपल सा फोन आता है कि आपकी इतने की कमाई है ना तो आपको इतने की लोन मिल सकती है. अभी आजकल तो ईमेल भी आते हैं कि आपकी अगले 8 महीने की कमाई अपफ्रंट मिल जाएगी आपको. कोई कमाई अपफ्रंट नहीं देता है, वो वापस देनी पड़ती है जो अपफ्रंट ली है वो ब्याज के साथ. नो वहां पे जैसे ही इनकम बंद हुई he had to leave the house simply because somebody else had financed it. So आज की ये बुक में नहीं लिखा है पर जनरली मतलब बहुत लोगों को मिलते हैं तो पता चलता है कि वो अपनी फैमिली के लिए या खुद के लिए नहीं जीते हैं, बैंक के लिए जीते हैं. अब 30 दिन में से 7 दिन किसी का कार के लिए जीते हैं, हाँ, 15 दिन हाउस के लिए जीते हैं. ये हफ्ता कार का, ये 10 दिन घर के, वो 3 दिन लास्ट ईयर वेकेशन किया था उसका अभी नौकरी कर रहे हैं. सो these are the issues with some of these things. So वहाँ पे and then comes that 0% वाला. Now 0% का कोई भी प्रकार की ऑफर आती है तो उसके लिए एक छोटी सी मूवी क्लिप दिखाना चाहूँगा. वहाँ पे एक ओ माय गॉड वाली OMG वाली क्लिप है. कोई भी ये ऑफर आता है तो हमेशा परेश रावल को याद करना. आई होप दिस साउंड प्लीज वेल. नहीं है तो एनीवे आप लोगों को समझ आ जाएगा क्या है ये. मैं बता दूंगा फिर से. हाँ somebody said यार और यार यहीं पे आया आवाज यहीं पे अरे चलो बेटा सही यस सर. नहीं वो नहीं यस दैट वाला नहीं. हाँ OMG वाला ये जो नहीं वो नहीं It's okay. No issues. हाँ बस. Wish to gift you manufacturer and exporter of quality stationery products. The gift also contains the book